Hello students, we are going to start matrices series. This is first part of matrices series, and in this part I will explain you about some basic of matrices, some special type of matrices and their properties. First of all, let us have what is a matrix. A matrix can be defined as a rectangular array of numbers or function. What is mean by rectangular array? When numbers or functions are arranged in a particular manner in some rows and columns, and they are enclosed within the square brackets like this. Here you have 2, 3, 4, 5, 6, 7. These 6 numbers are arranged in rows and columns, and they are enclosed within the brackets. Then this is called a matrix. This is the first row of the matrix. This is 5, 6, 7, second row of the matrix. Therefore, this matrix has 2 rows, and this is first column of the matrix. This is second column of the matrix, and this is third column of the matrix. Thus, this matrix has 3 columns. So, this matrix contains 2 rows and 3 columns, and therefore the order of this matrix is defined as order of matrix is defined as number of rows by number of column. Therefore, also a matrix is denoted by capital letters, like this matrix can be denoted by capital letter A. Then the order of this matrix A is equal to the number of rows, 2 rows, by the number of column, that is 3. Therefore, this is a matrix of order 2 by 3. Now, these numbers are called elements of the matrix A. This is an element of this matrix, this is an element, this is an element. These are called elements of the matrix A. These elements takes the position in first row and first column. Therefore, this position is defined as 1, 1 position. Similarly, this is at 1, 2 position. 1, 2 position means first row and second column. This is 1, 3 position. This is 2, 1 position. This is 2, 2 position, and this is 2, 3 position. Therefore, this is a matrix, and these are elements with their position. And the elements of a matrix, if I have a matrix A, then in short I can write down it as A11, A12, and so on, A21, A22. A11 represent the element at the position 1, 1. These subscripts are used to denote the position of the elements. Now, we discuss some special type of matrices. So, special type of matrices. One is square matrix. Square matrix. What is square matrix? When the number of rows and number of columns are equal, then the matrix is said to be square matrix. Number of rows equal to number of column. For example बनता है, जैसे ये मैट्रिक्स होगी आपके पास में 2, 4, 5, 6. This matrix has 2 rows and 2
columns. Therefore, it is of order 2 by 2, and this matrix is called square matrix. The second, unit matrix. Unit matrix or identity matrix. Identity matrix. Unit matrix or identity matrix. As we have discussed square matrix, these elements constitute the diagonal of this matrix, square matrix. ये क्या कहलाता है इसका? डायगोनल. एंड दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट्स. इफ आई, this is a matrix you see in which all the diagonal elements are unit, that is 1, and other elements are 0. This matrix is called unit matrix or identity matrix. Identity matrix or unit matrix means a square matrix whose all elements on the diagonal are 1 and other elements are 0. This is a 2 by 2 square identity matrix. Similarly, 3 order square matrix is 1 0 0 0 1 0 0 0 1. This is third order 3 order square matrix. Its order is 3 by 3. This is 3 order identity matrix and it is denoted by I3 and this is denoted by I2. So this is unit matrix or identity matrix. Now the next is null matrix. Null matrix means a matrix whose all elements are 0. All elements are 0. For example, this is 0 0 0 0. It is a null matrix, null square matrix of order 2. This is a null matrix. This is a rectangular null matrix of order 2 by 3. So therefore, when all the elements are 0 of a matrix, then it is called null matrix. Similarly, row matrix. Row matrix, row or column matrix. A matrix like this 2 4 5 6 which has only one row, therefore it is of 1 by some order, like it is 1 by 4, 1 row 4 columns. So therefore it has only one row, then it is called a row matrix. Row matrix or row vector. Simply we say it row vector. Similarly, if a matrix has only one column like this 1 2 3, this is a matrix of order 3 by 1. It has one column and 3 rows. It is called a column matrix or column vector. Column vector. So this is a row vector, this is column vector. Now you know the addition of two matrices. Addition, how can we add two matrices? Addition of two matrices. How can we add two matrices? First of all, both the matrices must be of same order. If we are going to add two matrices, they must be of same order. Same order matrix can be added. Matrices can be added. And how can you add two matrices? Like this, if we have a matrix like A1, A11,
A12, A13, A21, A22, A23, and we have to add second matrix, that is equal to B11, B12, B13, B21, B22, B23. Then how can we add two matrix? Add the corresponding element of the same position. Add the element of the same position. Like this is an element of 1 1 position of first matrix. This is the element of 1 1 position. So add these two elements, A11 plus B11. Similarly, add this to this, A12 plus B12, A13 plus B13, A21 plus B21, A22 plus B22, A23 plus B23. Simply add the elements of same position of the different matrices. Similarly, we can subtract two matrices. If we are going to subtract this minus this, then apply negative sign between the corresponding elements. Corresponding elements mean between the elements of same position. Now we are going to like if we are going to subtract them, then what will we get? A minus B, this minus this is equal to A11 minus B11 minus B11, A12 minus B12, A13 minus B13, and so on. Therefore, you can subtract two matrices. Only replace this addition by subtraction. Now multiplication. Multiplication of two matrices. When we multiply two matrices, then if we have a matrix A and B, and we have to multiply A to B, then if order of A is equal to m by n, then order of B should be equal to n by p. What is necessary for the multiplication of two matrices? दो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने के लिए क्या आवश्यक है कि नंबर, इसमें जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं आपके A मैट्रिक्स में, इफ वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई A टू B, दैट इज A इंटू B, देन A में जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो B में नंबर ऑफ रो के इक्वल होने चाहिए. Order of A must be m by n, then order of B must be n by p. Now how can we multiply them? आइए उसके लिए मल्टीप्लाई कैसे करते हैं. जैसे मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, आपके पास में A मैट्रिक्स हो गई आपके पास में A11, A12, A13, A21, A22, A23, and B is another matrix like this, B11, B12, B21, B22, B31, B32. Now we are going to multiply, that is AB. तो सबसे पहले आपको यहाँ चेक करना होगा order of A. Order of A is equal to 2 by 3, 2 row 3 columns, and order of B is equal to 3 row 2 column, that is equal to 3 by 2. So therefore the number of columns in A is equal to the number of rows in B. So A can be multiplied to B. Now how we will multiply? A11, A12, A13, A21, A22, A23, that is B11, B12, B21, B22, B31, B32. Now how we multiply two matrices? Like take first row from A and first column from B and put this row over this column. Then A11
इंटू B11 प्लस A12 इंटू B21 प्लस A13 इंटू B31। क्या बताया हमने आपको? फर्स्ट रो लो, फर्स्ट कॉलम के ऊपर इसको पुट कर दीजिए। तो जो एलिमेंट जिसके ऊपर आता है उन्हें मल्टीप्लाई करो और बीच में क्या लगाइए आप? प्लस, एडिशन कर दीजिए। तो क्या बनता है देखिए आप यहाँ पर, ये बनता है आपके पास में, क्या बन गया आपके पास में? तो कौन सा एलिमेंट आएगा? आपने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यूज किया है, फर्स्ट रो को बी के फर्स्ट कॉलम के ऊपर किया है, तो फर्स्ट एलिमेंट आएगा, यानी कि आपका फर्स्ट एलिमेंट आ गया आपके पास में। तो क्या बन जाता है आप देखते हैं, A11 B11 प्लस A12 B21 plus A13 B31. Now put the same first row on second column. तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यानी कि 1 2 एलिमेंट आ जाएगा, दैट मीन्स यहां पर सेकंड एलिमेंट आ जाएगा। दिस रो इसके ऊपर रखना है आपको, ये पुट कर देना है इसके ऊपर। तो फिर मल्टीप्लाई कैसे होगा? A11 इंटू B12 A11 इंटू B12 प्लस A12 B22 प्लस A12 B22 प्लस A13 B32। इस तरह से आप समझ गए होंगे। नाउ फर्स्ट रो को आपने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया। यदि यहाँ थर्ड कॉलम होता तो फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करते, एंड सो ऑन। तो हमारी फर्स्ट रो से फर्स्ट रो जनरेट हो जाएगी। नाउ यही काम हम करते हैं सेकंड रो से। अब हम सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से कर रहे हैं, तो 2 1 एलिमेंट आएगा। कहने का मतलब है सेकंड रो जनरेट होगी हमारी मल्टीप्लीकेशन में। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो इस सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के ऊपर रखिए इसको, और इनको क्या कर दीजिए आप? नाउ मल्टीप्लाई दीज एलिमेंट्स। A21 B11 प्लस A22 B21 प्लस A23 B31। इस रो को उठाइए, इस कॉलम के ऊपर इसको रख दीजिए और मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए इनको। तो क्या? A21 B11 प्लस A22 B21 प्लस A23 B31 एंड सिमिलरली सेकंड रो को फिर सेकंड कॉलम से। इस तरह से अब इसकी सेकंड रो का यूज करेंगे इसके कॉलम्स के साथ में, और क्या करेंगे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से आप इनको दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नाउ स्केलर मल्टीप्लिकेशन मीन वी हैव सम स्केलर, सम नंबर and a matrix like K is a scalar K equal to 3 and A is a matrix A is 2 5 6 7 8 9 and K means K एक स्केलर हो गया, उसको किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, किसी नंबर को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो गया यहाँ पर? 3 हो गया बाहर, ये K की वैल्यू, और A मैट्रिक्स हो गई। अब क्या होता है देखो, स्केलर मल्टीप्लिकेशन में जो स्केलर होता है, जो बाहर संख्या होती है, जो नंबर होता है, दैट इज मल्टीप्लाइड टू ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। वो हर एक एलिमेंट से क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई हो जाता है। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27। इस तरह से ये होता है आपके पास में स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो ये कुछ बेसिक ऑपरेशंस थे मैट्रिसेस के, जो हो सकता है आप जानते भी हो, तो ये बड़े इजी हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। नाउ वी डिस्कस सम स्पेशल मैट्रिसेस। द फर्स्ट इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मींस वो स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके, जैसे कि एक हम लेते हैं 2 4 5 0 6 0 0 0 7। This is a square matrix and you see that this is the diagonal of the matrix. Now you see that all the elements below the diagonals are 0. Then such matrices are said to be upper triangular matrix. यदि वो स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल से नीचे जो जितने भी एलिमेंट, ऑल एलिमेंट्स बिलो डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल, दिस इज कॉल्ड डायगोनल और प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स, एंड ऑल द एलिमेंट्स बिलो द स्क्वायर डायगोनल of the matrix are 0, then this matrix is said to be upper triangular matrix. Similarly, lower triangular matrix, lower triangular matrix, lower triangular matrix like this matrix
when 2 4 5 0 0 6 0 0 7. Now you see that this is the principal diagonal of the square matrix, and all the elements above the diagonal are 0. Therefore this matrix is said to be lower triangular matrix. So the square matrix having all elements above the principal diagonals to be 0 are called lower triangular matrix. And the next one is diagonal matrix. Diagonal matrix. Diagonal matrix, a matrix which is lower triangular as well as upper triangular. That is, we may say a matrix like 2 0 0 0 4 0 0 0 7. Now you see that all the elements except the diagonal elements are 0. Then this matrix is said to be diagonal matrix. That is, all the elements, आपके डायगोनल एलिमेंट, ये जो डायगोनल पर है ये डायगोनल एलिमेंट कहलाते हैं. डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर सभी एलिमेंट क्या हो गए, 0 हो गए. तो ये मैट्रिक्स क्या कहलाई, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाई आपके पास में. डायगोनल मीन्स द मैट्रिक्स विच हैज ओनली नॉन जीरो एलिमेंट एट इट्स डायगोनल. केवल डायगोनल पर होंगे उसके नॉन जीरो एलिमेंट. यहां पर जीरो भी हो सकते हैं, लेकिन इसकी कंडीशन क्या है कि इससे अलग, डायगोनल से अलग सभी एलिमेंट क्या होने चाहिए, 0 एलिमेंट होने चाहिए. ये डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल मैट्रिक्स होगी. एक द नेक्स्ट इज स्केलर मैट्रिक्स. स्केलर मैट्रिक्स. स्केलर मैट्रिक्स is again a diagonal matrix. Is a diagonal matrix, but the diagonal matrix whose diagonal has equal elements like 4 0 0 0 4 0 0 0 4. ये वो डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल पर सभी एलिमेंट्स इक्वल होंगे. दैट इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स. 5 5 5 हो सकते हैं, यहां पर कोई भी स्केलर हो सकता है, कोई भी नंबर सेम होने चाहिए, तब ये क्या कहलाएगी, स्केलर मैट्रिक्स. ये डायगोनल मैट्रिक्स है, ये भी क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स. देयरफॉर एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, बट एवरी डायगोनल मैट्रिक्स नीड नॉट बी स्केलर मैट्रिक्स. नाउ वी टेक सम idempotent matrix. A matrix A is said to be idempotent if A square is equal to A. क्या मीनिंग हुआ कि यदि हम A को A से मल्टीप्लाई करें और वो A के ही इक्वल आ जाए तो मैट्रिक्स क्या कहलाई आपके पास में, idempotent मैट्रिक्स. जैसे कि आप एक एग्जांपल देख सकते हैं, A मैट्रिक्स ले सकते हैं आप. इस मैट्रिक्स को आप अपना ए से ही मल्टीप्लाई कीजिए तो ये सेम मैट्रिक्स आती है आपके पास में. 2 -2 4 -1 3 4 1 -2 -3. तो जब आप ए मैट्रिक्स को इसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी. तो ये मैट्रिक्स कैसी हो जाएगी आपके पास में, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स. आप इस मैट्रिक्स को ए से मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं. आप ए इंटू ए निकालिए, दैट मीन्स ए स्क्वायर होगा. ए स्क्वायर मीन्स ए इंटू ए. ए मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स से ही मल्टीप्लाई करना है तो वो ए के ही इक्वल आ जाएगा. तो मैट्रिक्स ऐसी बन जाएगी, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बन जाएगी. दूसरी आती है आपके पास में इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स. इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स A is said to be involutory matrix if A square is equal to I. यदि हम A स्क्वायर करें, A को A से मल्टीप्लाई करें, वो क्या आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए,
तो वो क्या कहलाता है आपके पास में, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स कहलाती है आपकी। इस तरह से आप देखते हैं यूनिट मैट्रिक्स जो होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जानते हैं, उसकी कितनी भी पावर करिए आप, कितनी भी उसको आपस में मल्टीप्लाई करिए तो वो किसके इक्वल होगा, आई के ही इक्वल होगा। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसी हुई आपके पास में, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स हुई। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की आप ब्यूटी होती है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उसको चेंज नहीं करेगी, वो आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स इसीलिए कहलाती है। तो ये प्रॉपर्टी आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की होती है। ये आप किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लेकर और किसी दूसरी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद आप देख भी सकते हैं। तो यहाँ पर देखा आपने कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसी है आपके पास में, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स भी है। दूसरी चीज आप नोट कर सकते हो कि द आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज द ओनली मैट्रिक्स विच इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स एज वेल एज इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, जो दोनों हो सकती है। क्यों? क्योंकि देखो इनवॉल्यूटरी है तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, और आइडेम्पोटेंट भी लें उसको तो ए स्क्वायर इक्वल टू ए, देयरफॉर फर्स्ट एंड सेकंड से ए इक्वल टू आई। तो ये हम देख सकते हैं। द थर्ड वन इज निलपोटेंट मैट्रिक्स। निलपोटेंट मैट्रिक्स, निलपोटेंट मैट्रिक्स मीन्स a matrix A is nilpotent if there exist some positive integer k such that a raised to power k is equal to 0 मैट्रिक्स। व्हाट इज इट्स मीनिंग? यदि हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है कि हमने उसका ए स्क्वायर किया, ए इंटू ए किया, जीरो आ गया, या जीरो नहीं आया तो ए इंटू ए क्यूब किया, यानी कि ए स्क्वायर इंटू ए किया, वो जीरो आ गया। जीरो नहीं आया तो ए स्क्वायर इंटू ए रेज टू पावर 4 निकाली। कहने का मतलब है कि यदि किसी मैट्रिक्स के लिए कोई ऐसा के एग्जिस्ट करता है जिसकी के ए की पावर करने पर वो क्या आ जाती है, जीरो मैट्रिक्स आ जाती है। कहने का मतलब है कि यदि किसी मैट्रिक्स को हम उसी से मल्टीप्लाई करते जाएं और एक स्टेज ऐसी आए कि वो जीरो मैट्रिक्स के इक्वल हो जाए, वो स्टेज सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्टेप के बाद हो सकती है। कहने का मतलब 4 बार मल्टीप्लाई करने के बाद हो सकती है, 5 बार मल्टीप्लाई करने के बाद हो सकती है। यदि ऐसी स्टेज आती है तो मैट्रिक्स क्या कहलाती है आपके पास में, निलपोटेंट मैट्रिक्स। एंड दैट लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर, मान लीजिए हमने एक मैट्रिक्स ए को 2 बार मल्टीप्लाई किया, ए इंटू ए नॉन जीरो आया, फिर हमने 3 बार किया, ए क्यूब निकाला, ए इंटू ए वो भी नॉन जीरो आया, फिर हमने 4 बार किया, ए रेज टू पावर 4 निकाला तो वो भी आपके पास में क्या बताया हमने, ए नॉन जीरो था, ए स्क्वायर भी क्या आया, नॉन जीरो, ए क्यूब क्या आया आपके पास में, नॉन जीरो, ए 4 क्या आया आपके पास में, जीरो। तो आगे जब हम करेंगे ए 5, ये भी सब क्या आएंगे, जीरो, क्योंकि आप देख सकते हो ये सब भी जीरो होंगे, क्योंकि ए 5 क्या होगा, ए रेज टू पावर 4 इंटू ए, और A4 क्या हो गया, जीरो। तो इस तरह से देखा, लेकिन यहां पर जो लिस्ट सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर मिला जिसके लिए A4 क्या हुआ, जिसके लिए A रेज टू पावर K क्या बना, रिड्यूस टू जीरो मैट्रिक्स। तो ये कहलाता है आपके पास में लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर, दैट इज कॉल्ड इंडेक्स ऑफ निलपोटेंट मैट्रिक्स ए। ये कहलाता है निलपोटेंट मैट्रिक्स ए का इंडेक्स। एंड द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर K such that a raised to power k is equal to 0 is called index of nilpotent matrix। तो ये कुछ बेसिक टाइप्स थे। नाउ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो लेट अस हैव एन एग्जांपल, लेट ए बी अ मैट्रिक्स लाइक दिस 2 3 4 5 6 7, then its transpose is obtained by interchanging row by columns, corresponding row to corresponding column। what do you mean? First row becomes first column,
रो को कहीं में इंटरचेंज कर दीजिए कॉलम में। जैसे ये फर्स्ट रो है आपका, तो इसको बना दीजिए फर्स्ट कॉलम, दैट इज रो। रो कहीं में कन्वर्ट हो गई कॉलम में, तो इसका ट्रांसपोज बन जाता है और उसको हम ए डैश से डिनोट करते हैं। तो ये क्या बन गया आपके पास में, आप देखते हैं फर्स्ट रो थी 2 3 4, ये फर्स्ट कॉलम बन गया 2 3 4। ये सेकंड रो थी आपके पास में, ये सेकंड कॉलम बन गया आपके पास में 5 6 7। इस तरह से ये हो गया आपके पास में ए का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज बनाने के लिए क्या करते हैं, हम रो को कॉलम में इंटरचेंज कर देते हैं। जो रो है उनको क्या बना देते हैं, आप कॉलम कर देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, उसका ट्रांसपोज बन जाता है। अब इस ट्रांसपोज की बेस पर आप कुछ मैट्रिक्स डिफाइन करते हैं। उसमें सबसे पहले आती है आपके पास में, दैट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक वो मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स A is called symmetric if A dash means A transpose is equal to A। यदि हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले और वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है, तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाती है, आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल लेट A be a matrix like this 2 4 5 4 5 6 7 7 8। now this is A। now you find its transpose A dash is 2 4 5 फर्स्ट रो है, तो इसे बनाइए आप फर्स्ट कॉलम, और फर्स्ट कॉलम क्या बन जाएगा, फर्स्ट रो बन जाएगा। आपस में इंटरचेंज कर दीजिए, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम आपने बनाया, तो ये बन गया 2 4 5। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम कर दिया आपने 4 6 7। नाउ थर्ड रो को आपने थर्ड कॉलम किया, तो ये बन गया आपके पास में 5 7 8। and therefore you see this A dash is nothing but it is equal to A, so it is a symmetric matrix। एक चीज और आपको देखने को मिलेगी कि जब हम ट्रांसपोज लेते हैं तो मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो रिवर्स हो जाता है। जैसे कि ए मैट्रिक्स थी यहाँ पर आपके पास में 2/3 ऑर्डर की, तो ये हो गया 3/2 ऑर्डर की। और हम जानते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में दोनों मैट्रिक्स सेम रहनी है, इक्वल रहनी है, तो इसमें दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सेम तभी हो सकता है जब आपकी मैट्रिक्स कैसी हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो, दोनों ये क्वांटिटी सेम हो, दोनों वैल्यू ये सेम हो। तो इस तरह से यहाँ पर आई स्क्वायर मैट्रिक्स भी लिख सकते हैं कि आ स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि केवल स्क्वायर मैट्रिक्स ही कैसी हो सकती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो सकती है। सिमिलरली दूसरा आता है आपके पास में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ स्क्वायर मैट्रिक्स, matrix A is said to be skew symmetric if A dash is equal to minus A। for example A is equal to 0 2 4 -2 -4 0 -6 6 0। then A dash is equal to, change the row to column, first row first column कर दीजिए 0 2 4 -2 0 -6 -4 -6 0। अब आप क्या करिए, यहां से आप चाहे तो सभी एलिमेंट में -1 बाहर ले सकते हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन जैसा कि आपने पढ़ा है, सभी में हम -1 -1 -1 -1, यहाँ भी माइनस ऑफ -1 करके, तो ये क्या बन जाता है, दैट इज माइनस ऑफ 0 2 4 -2 -4 0 6 and this becomes, sorry, this become +6
this become -6, this is -6, sorry, this become -6 and this become +6 and this is 0 and it is nothing but ये क्या हो गया आपके पास में -a। तो इस तरह से आपने देखा एक ऐसी मैट्रिक्स हो गई, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। तीसरी आती है आपके पास में यहाँ पर आपके पास में ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। द थर्ड वन इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स A is said to be orthogonal matrix if A dash into A is equal to identity। यदि हम किसी मैट्रिक्स A को उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करें और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाती है तो वो क्या कहलाती है आपके पास में ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल हम एक मैट्रिक्स ले सकते हैं एग्जाम्पल के लिए, लेट A इज इक्वल टू कोस थीटा एंड कोस थीटा साइन थीटा। यहां पर आपने क्या लिया साइन थीटा एंड यहां पर आपने लिया यहां पर लिया माइनस साइन थीटा और यहां लिया आपने कोस थीटा। नाउ यू फाइंड A डैश। व्हाट इज A डैश? दिस इज कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा एंड दिस इज कोस थीटा। ओ सॉरी, ये आपने लिया A मैट्रिक्स ली, A ट्रांसपोज बनाया तो ये बन गया आपके पास में A डैश इंटू A इज इक्वल टू A डैश कोस थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा एंड दिस इज दिस इज A कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा। नाउ आपने इनको मल्टीप्लाई किया, दिस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से दिस इंटू दिस कोस थीटा इंटू कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस माइनस साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो ये बन गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो कि आप जानते हैं क्या होता है 1। नाउ मल्टीप्लाई दिस फर्स्ट रो टू सेकेंड कॉलम, कोस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस माइनस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये दोनों कैंसिल हो गई, क्या आ गया ये आपके पास में 0। सिमिलरली मल्टीप्लाई सेकेंड रो टू फर्स्ट कॉलम, साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस कोस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, तो ये दोनों टर्म भी क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो ये भी क्या आ गया आपके पास में 0। नाउ मल्टीप्लाई सेकेंड रो टू सेकेंड कॉलम, दिस इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos square theta and it again become 1, therefore it is a identity matrix of order 2 that is equal to I. So A is orthogonal. A is orthogonal. Therefore these three type of matrices, symmetric matrices, skew symmetric matrices and orthogonal matrices are very important for your next study. Now we prove a very important result for square matrices. Every square matrix can be uniquely expressed as the sum of symmetric and skew symmetric matrices. हमें क्या करना है इस थ्योरम में कि जितने भी स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं सभी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को लिख सकते हैं दो मैट्रिक्स के सम के रूप में, जिसमें से एक सिमेट्रिक होगी और एक स्क्यू सिमेट्रिक होगी। और ये जो एक्सप्रेशन है ये यूनिक है। कहने का मतलब है कि किसी दी हुई मैट्रिक्स के लिए फॉर एनी गिवन मैट्रिक्स दिस एक्सप्रेशन इज यूनिक। यूनिक मीन्स वन एंड ओनली वन वे। आप केवल एक और केवल एक तरीके से उसे एक्सप्रेस कर सकते हो एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो आइए इसको हम प्रूव करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम लेट ए बी आ स्क्वायर मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले ली हमने। देन आप जानते हैं हम ए को
लिख सकते हैं इस तरह से 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश। यदि आप यहाँ कैलकुलेट करें तो ए डैश कैंसिल हो जाएगा और 1/2 ए प्लस 1/2 ए बन जाएगा। तो इस तरह से आप इसको ये एक्सप्रेस कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू। नाउ इस मैट्रिक्स को आपने पी से डिनोट किया और इस मैट्रिक्स को आपने क्यू से डिनोट किया, तो ये बन गया ए इज इक्वल टू पी प्लस क्यू। अब हम शो करेंगे कि पी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और क्यू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। वेयर, तो देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हम किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक दिखाने के लिए क्या करते हैं, हम उसका ट्रांसपोज निकालते हैं और यदि वो ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है तो वो क्या बन जाती है, सिमेट्रिक। तो आइए हम पी का ट्रांसपोज निकालते हैं। पी ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए डैश डैश। अब यहां पर मैं आपको कुछ ट्रांसपोज की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज आपको बताना चाहूंगा। ये जो आप याद रख सकते हैं वो इजी है, उनको आप देख भी सकते हैं, कोई मैट्रिक्स लेकर उनको चेक भी कर सकते हैं। क्या, सबसे पहले k कोई स्केलर है, a कोई मैट्रिक्स है, देन k a डैश इज इक्वल टू k इंटू a डैश। सेकेंड प्रॉपर्टी, a प्लस b डैश इज इक्वल टू a डैश प्लस b डैश। थर्ड प्रॉपर्टी, a b डैश इज इक्वल टू b डैश a डैश। फोर्थ प्रॉपर्टी, a डैश डैश इज इक्वल टू a। ये चार प्रॉपर्टी आपकी ट्रांसपोज की होती है। इनको आप इजीली देख सकते हो, a और b दो मैट्रिक्स लेकर आप उनको शो भी कर सकते हो। a प्लस b करो, उसका ट्रांसपोज निकालो, फिर a का ट्रांसपोज b का ट्रांसपोज निकालो, ऐड करो तो दोनों क्या आएगी, सेम आएगी। फिर a और b को मल्टीप्लाई करो, उनका ट्रांसपोज आप देख सकते हो, तो वो बराबर क्या होगा, b ट्रांसपोज a ट्रांसपोज। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि प्रोडक्ट के ट्रांसपोज जब लेते हैं तो उनके ट्रांसपोज के प्रोडक्ट का रिवर्स ऑर्डर हो जाता है। ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। यहां देखते हैं आप, यदि आप ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले और उसका फिर से ट्रांसपोज ले तो ए के इक्वल आ जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप देखते हैं कि जब हम ए का ट्रांसपोज लेते हैं तो रो कॉलम में बदलते हैं, हम फिर ट्रांसपोज लेंगे तो फिर वो कॉलम कहीं में चेंज हो जाएंगे, रो में चेंज हो जाएंगे, तो ओरिजिनल मैट्रिक्स ए आ जाएगी। तो इस तरह से ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है आपकी ट्रांसपोज की, इनका हम यहाँ पर यूज करेंगे। अब आइए चलते हैं, दैट इज इक्वल टू, ये आपका k हुआ, तो हमने ये प्रॉपर्टी यहां पर अप्लाई की, तो k यानी कि 1/2 इसका ट्रांसपोज, दैट इज a प्लस a डैश का ट्रांसपोज। नाउ अप्लाई द सेकेंड प्रॉपर्टी, 1/2 a प्लस a डैश a प्लस b डैश इज इक्वल टू a डैश प्लस b डैश मीन्स a डैश डैश। नाउ अप्लाई द फोर्थ प्रॉपर्टी, a डैश डैश इज इक्वल टू a 1/2 a dash plus a and that is equal to, you see, 1/2 a plus a dash and that is equal to p। यही हमारा p है। तो इस तरह से देखा आपने कि p डैश इक्वल टू p आ गया और ये डेफिनेशन किसकी है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। तो इस तरह से ये जो मैट्रिक्स बनी आपकी, ये कैसी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दिस इंप्लाइज p इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नाउ Q, हमको Q को दिखाना है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो नाउ ऑल्सो हम Q डैश निकालते हैं। Q डैश विल बी इक्वल टू 1/2 a माइनस a डैश डैश। हम फिर से ये प्रॉपर्टीज यहाँ पर अप्लाई करते हैं, तो ये बन जाता है 1/2 a माइनस a डैश डैश। अप्लाई द सेम प्रॉपर्टी, दैट बिकम 1/2 a डैश माइनस a। यहां पर मैंने अप्लाई ये भी प्रॉपर्टी कर दी और ये प्रॉपर्टी लगा, दैट इज इक्वल टू माइनस 1/2 a माइनस a डैश एंड दैट इज इक्वल टू माइनस 1/2 a माइनस a डैश क्या है आपका, q है, तो ये माइनस q आ गया। तो इस तरह से देखा आपने q डैश इज इक्वल टू माइनस q, देयरफॉर दिस q इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड दिस इंप्लाई q इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। Thus
Thus, A is written as the sum of two matrices P and Q, where P is symmetric and Q is skew symmetric. Therefore, every square matrix can be expressed as sum of symmetric and skew symmetric matrix P and Q. Now we are going to show this expression is unique. Unique means केवल किसी मैट्रिक्स A के लिए केवल ये ही दो मैट्रिक्स है P और Q, जिनमें से ये सिमेट्रिक और ये स्क्यू सिमेट्रिक है, कि A है उन दोनों का सम. कोई और दूसरी दो मैट्रिक्स सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक एग्जिस्ट नहीं करती कि A उनके इक्वल हो सके. तो आइए हम यूनिकनेस दिखाते हैं कि A को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के रूप में लिखने का यही तरीका यूनिक है. तो यूनिकनेस के लिए हम मान लेते हैं यहां के लिए फॉर सपोज हमने मान लिया कि A मैट्रिक्स का कोई अदर मैट्रिक्स भी है, A इक्वल टू R प्लस S, वेयर R इज सिमेट्रिक and S is skew symmetric. R is symmetric and S is skew symmetric. तो अब हम दिखाएंगे कि R is nothing but R is equal to P and Q is nothing but S is nothing but it is equal to Q. तो ये शो करने के लिए आइए हमने माना कि A के लिए कोई दो अन्य मैट्रिसेस एग्जिस्ट करती है, RS जिसमें R सिमेट्रिक है और S इसको सिमेट्रिक है. देन दिस इंप्लाई A डैश इज इक्वल टू R डैश R प्लस S डैश एंड दैट इज इक्वल टू R डैश प्लस S डैश एंड दैट इज इक्वल टू R प्लस माइनस S सिंस R is symmetric, implies R dash is equal to R, and since S is skew symmetric, so this implies S dash is equal to minus S. So R dash is equal to R and S dash is equal to minus S. Therefore, this implies A dash is equal to R minus S. Now, solve these two equations. A is equal to R plus N and A dash is equal to R minus S. Then we write down this as equation 2 and this as 3. From 2 and 3, R is equal to R. Add them. A plus A dash is equal to 2R. Therefore, R is equal to 1 by 2 A plus A dash. And that is equal to P, and S is equal to this minus this, A minus A dash कीजिए तो 2S हो जाएगा. तो S is equal to क्या आ गया आपके पास 1 by 2 A minus A dash and that is equal to Q. इस तरह से हमने देखा कि हमारी मैट्रिक्स A के लिए जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स P और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स Q का जो एक्सप्रेशन था वो यूनिक हो गया. यूनिक कैसे हो गया कि यदि हम A को किन्हीं दो अन्य मैट्रिक्स R और S का हम सम लेते हैं जहां पर R सिमेट्रिक है और S स्क्यू सिमेट्रिक है, तो R भी P के इक्वल हो जाता है और S भी Q के इक्वल हो जाता है. देयरफॉर वी सी दैट दिस एक्सप्रेशन ऑफ A एज द सम ऑफ टू सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज यूनिक. So the expression 1 is unique. Hence proved. ये हमें प्रूव करना था. ये जो एक्सप्रेशन है वो कैसा है, यूनिक है. तो आइए न्यूमेरिकली भी यदि हमें किसी मैट्रिक्स को लिखना होगा दो मैट्रिक्स के सम के रूप में जिसमें से एक सिमेट्रिक हो उसकी और स्क्यू सिमेट्रिक हो, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे उसकी, हम वो मैट्रिक्स ए लेंगे उसका ट्रांसपोज निकालेंगे और पी निकाल लेंगे. पी हो जाएगी 1 by 2 A प्लस A डैश. हम उस मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज जोड़ देंगे और उसको हाफ कर देंगे और फिर क्यू निकाल सकते हैं हम A माइनस A डैश करके और उसको हाफ करने के बाद. For let us have an example. Now let us have an example to show it. Express matrix A as the sum of symmetric and skew symmetric matrices.
वेयर ए इज इक्वल टू दिस। ए हमें मैट्रिक्स दे दी गई, हमें इसको लिखना है दो मैट्रिक्स के रूप में, के सम के रूप में, जिसमें से एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो और एक स्क्यू सिमेट्रिक हो। तो उसके लिए कैसे लिखते हैं, आप जानते हैं किसी भी मैट्रिक्स को जब हम लिखते हैं तो वो कैसे बनता है, ए इज इक्वल टू होता है 1/2 ए प्लस ए डैश, हमने अभी पढ़ा है ये, शो किया है 1/2 ए माइनस ए डैश। वेयर इसको हम P बोल देते हैं और इसको हम Q बोल देते हैं। P सिमेट्रिक आती है और Q कैसी बनती है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो हमें भी अपनी मैट्रिक्स A के लिए क्या निकालना है, P और Q फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए क्या चाहिए आपको, A ट्रांसपोज। तो आइए हमने क्या किया, सबसे पहले A हमारे पास ये है, हमने इसका निकाला ट्रांसपोज A डैश, रो को कहीं में कन्वर्ट कर ले, इंटरचेंज किया कॉलम से, ये बन गया। अब A इक्वल टू क्या होती है, अभी आपने देखा है P प्लस Q, वेयर P क्या होता है 1/2 A प्लस A डैश, और ये कैसी होती है, सिमेट्रिक होती है। और Q क्या होता है 1/2 A माइनस A डैश, ये कैसी होती है, स्क्यू सिमेट्रिक होती है। तो इस तरह से A इज इक्वल टू P प्लस Q हो गया, वेयर P इज सिमेट्रिक एंड Q इज स्क्यू सिमेट्रिक। अब हमको P फाइंड आउट करना है और Q फाइंड आउट करना है। P इज इक्वल टू होता है, आप देखते हैं P इज इक्वल टू 1/2 A प्लस A डैश, तो P इज इक्वल टू 1/2 A, पुट द वैल्यू ऑफ A and plus A dash, put the matrix A dash. Now add these two matrix, कैसे ऐड होती है आप जानते हैं, फर्स्ट प्लस फर्स्ट कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम ऐड कर देते हैं। तो ये आ गया, जब हमने कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड किया, बाहर 1/2 था, 1/2 से सभी एलिमेंट्स को हमने मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास में ये आ गई हमारे पास में मैट्रिक्स P। इसी तरह से हमें मैट्रिक्स क्या निकालनी है, Q। तो Q इज इक्वल टू क्या होता है 1/2 A माइनस A डैश, तो दैट इज इक्वल टू 1/2 A, यहाँ पर हमने A मैट्रिक्स रखी, माइनस A डैश, यहाँ पर हमने A डैश मैट्रिक्स रखी। तो नाउ A माइनस A डैश, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया, 2 माइनस 2 ये 0 हो जाता है, 1 माइनस -1 ये 2 हो जाता है। इस तरह से हमने इस मैट्रिक्स में से इसको सब्ट्रैक्ट किया, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये मैट्रिक्स आ गई। बाहर हमारा था 1/2 से सभी एलिमेंट को हमने मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गई हमारे पास में मैट्रिक्स Q। और इस तरह से हमने लिखा मैट्रिक्स A के लिए, A को लिख पाए दो मैट्रिक्स के सम के रूप में P और Q, वेयर P इज सिमेट्रिक एंड Q इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो इस तरह से हम किसी न्यूमेरिकल मैट्रिक्स को भी हम लिख सकते हैं एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। नाउ प्रॉब्लम्स को करने के लिए आपको तीन चीजें याद रखनी है। यदि किसी भी मैट्रिक्स को आपको सिमेट्रिक शो करना है तो आपको क्या करना है, उसका ट्रांसपोज निकालिए और शो कीजिए कि A ट्रांसपोज इक्वल टू A, वो जो भी मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज निकालिए और वो उसी मैट्रिक्स के सेम आ जाता है। स्क्यू सिमेट्रिक के लिए आप क्या करेंगे, जो भी मैट्रिक्स को आपको शो करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो आप उसका ट्रांसपोज निकालिए एंड ट्राई टू शो इट टू बी -A। द थर्ड वन इज ऑर्थोगोनल को शो करने के लिए जो मैट्रिक्स आपको गिवन है तो आप उस मैट्रिक्स A का पहले ट्रांसपोज निकालिए A डैश, फिर A डैश को कहीं A से मल्टीप्लाई कीजिए और A से मल्टीप्लाई करने पर वो क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। तो मैट्रिक्स कैसी हो जाएगी आपके पास में, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो जाएगी। तो इस तरह से वी कैन डू सम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक एंड ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस। एंड that was all in this basic of matrices, and do some problems related to them. Thank you. Have a nice day.